Good morning, students. So we are doing chapter third, history, nationalism in India, and we are doing about non-cooperation movement. What we are discussing? We are discussing about non-cooperation movement. We have discussed why this movement was started by Mahatma Gandhi. Then we have discussed about the in which area or in which area it was started. We have discussed about the towns and cities and villages. Now we will discuss today about tribal movement. Tribal movement means the same non-cooperation movement was started by the some tribal people. Tribal people those who are living in the forest area, यानी जो forest area के अंदर रहते हैं वो लोगों ने कैसे इस movement के अंदर participation किया. Gudem Hills of Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh there are some Gudem Hills. In these areas some tribal people they were living and they have started the movement under the leadership of Alluri Sitaram Raju. Yani who was the leader of this tribal movement? Alluri Sitaram Raju. And this movement was started in Gudem Hills of Andhra Pradesh. Then they wanted to get back their traditional rights over forest. What happened when British government ruled on India and started ruling on India? What they have done? They have made some rule and regulation to the people those who are living in the forest area. Some restrictions put on those people. So these people also wanted that these restrictions which were put by the British government they should be removed. उनका मानना था कि जो उनको पुराने उनके जो rights थे उनको वो दोबारा दिया जाए क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी इसके अंदर because they are living in forest area क्योंकि वो रहते कहाँ पे forest area के अंदर रहते हैं. They were against the Gandhian method of non-violence. They followed violent method. They were following non-cooperation movement. But what they are doing? They were against the Gandhian method. Gandhian method means Mahatma Gandhi thought that there should be no violence. He was follower of non-violence. वो महात्मा गांधी किसके follower थे? Non-violence के थे. But these people started violent method. इन्होंने क्या किया? हिंसा करना, लड़ाई दंगे करना स्टार्ट कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर. इनका मानना था कि नॉन वायलेंस से हमारे को फ्रीडम या हमारे राइट्स वापस नहीं मिल सकते. दैट्स व्हाई दे वर नॉट फॉलोइंग द नॉन वायलेंस, दे वर फॉलोइंग द violence, but that were the part of non cooperation movement. Alluri Sitaram Raju, he was the follower of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के फॉलोअर थे but he believed in violence, not in non violence. तो ये ट्राइबल मूवमेंट के बारे में था कि किस प्रकार ट्राइबल मूवमेंट है वो चला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर. देन नेक्स्ट इज गिवन मूवमेंट इन द प्लांटेशंस. प्लांटेशंस का मतलब होता है द टी का गार्डन्स, कॉफी, रबर जो होते हैं उनके अंदर जो लोग रह रहे थे या उनमें जो काम कर रहे थे. How they have started movement? They have started movement. Why? Because they were also depressed or repressed by the British government. यानी उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी? परेशान कर रही थी. इसलिए उन्होंने भी क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अंदर पार्टिसिपेशन किया. उन्होंने कैसे किया? वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ असम डिमांडेड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द प्लांटेशन. जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको बॉन्डेड लेबर के तौर पे यूज किया जाता था, बंधुआ मजदूर के तौर पे. दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द प्लांटेशन विदाउट परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था. इसके लिए उन्होंने एक कानून बना रखा था. दे हैव मेड वन लॉ फॉर दिस. दे वर अगेंस्ट इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. यानी 1859 के अंदर क्या किया गया? एक कानून बनाया हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. इसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट. इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था. उस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि विदाउट परमिशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स द पीपल दोज हु वर डूइंग वर्क इन द प्लांटेशन दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड. उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था. तो ये किसके लिए मूवमेंट कर रहे थे? इस इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट को रिमूव करने के लिए कर रहे थे. दे हर्ड अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उन्होंने किसके बारे में सुना था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना था. तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया. पर उनकी डिमांड क्या थी? टू रिमूव द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट. They thought that Gandhiji Raj was coming and everyone would be given land in their villages. उनका ये मानना था कि गांधी राज आएगा. गांधी राज का मतलब यहाँ पे क्या है कि लोगों को खुद का राज मिलेगा और उनको उससे क्या मिलेगा? What they will get? They will get the land in their own villages. उनका मानना था कि उनको लैंड मिलेगी गांव के अंदर और उस लैंड से वो क्या करेंगे? अपने खुद का काम करेंगे. ऐसा उनका मानना था. अगर ये उन्होंने सोचा कि अगर इस मूवमेंट में हम पार्टिसिपेशन करेंगे तो. अब इसके बाद में ये था दो जगह पे ट्राइबल मूवमेंट पढ़ लिया, प्लांटेशन के बारे में पढ़ लिया. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज. सिटीज और टाउन के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था. बट आफ्टर सम टाइम्स दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्लो डाउन इन सिटी एंड टाउन. ये स्लो डाउन हो गया था. उसका कारण क्या था? दैट वी विल डिस्कस. खादी क्लोथ्स वर वेरी कॉस्टली, पुअर नॉट एबल टू पे बाय. अब क्या था कि जो खादी का कपड़ा होता था आपको पता है वो हाथ से बनता था और इतने हमारे पास मशीनरी वगैरह थी नहीं. सो
वेरी कॉस्टली, ये क्या था, महंगा था, डिमांड ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम था, इसलिए जो गरीब लोग थे वो इसको खरीद नहीं सकते थे। सो यू नो वेरी वेल क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू एवरी पर्सन, तो इसलिए वो खरीद नहीं पा रहे थे। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्टार्टेड बाइंग द सेम क्लॉथ विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो मशीन से बनता था उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। व्हाई, बिकॉज दैट वाज नॉट कॉस्टली इन कंपैरिजन ऑफ खादी क्लॉथ। Indian people left British institutions like law courts and educational institutions, but there was no alternative. What the people did in non-cooperation movement in town and cities, शहरों में और कस्बों में लोगों ने क्या किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोर्ट्स थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज थे, उन सभी को छोड़ दिया था। बट देयर वाज नो अल्टरनेटिव, छोड़ तो दिया बट अब उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि व्हाट शुड दे डू, उनको क्या करना चाहिए। अल्टरनेटिव नहीं मिला तो हाउ दे विल दे कैन अर्न देयर मनी एंड हाउ दे विल सर्वाइव। सो उन्होंने क्या किया, दोबारा से उन चीज़ों के अंदर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में। सो पीपल हैड टू स्टॉप बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी चीज़ का विरोध करना, उस चीज़ का यूज ना करना, दैट वाज बॉयकॉट। तो ये इसके अंदर किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। दिस वाज द इसके कारण क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हो गया सिटी और टाउन के अंदर। सो दीस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। पहला हमने पढ़ा कि ट्राइबल मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तौर पे कैसे चलाया गया आपका गुडेन हिल्स और आंध्र प्रदेश के अंदर। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द प्लांटेशन, जो प्लांटेशन था, बागान थे चाय के, कॉफी के, रबड़ की, उनके अंदर लोगों ने किस प्रकार पार्टिसिपेशन किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज एंड टाउन, वहां पे ये कमजोर क्यों पड़ गया, दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट दीस थिंग्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।